Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Naveed, Government Postgraduate College Okada. Dear students, today's topic is absolute potential energy. This is lecture number 5 of FSE part 1. Absolute potential energy. The work done in moving an object from the earth's surface to infinity, where the force of gravity becomes zero, is known as absolute potential energy. Dear students, you have to displace a body from the surface of earth to infinity, where gravitational acceleration is equal to zero. Now, its explanation. Let us consider a body of mass m. Let us consider a body of mass m which is lifted from point 1 to a very large distance at n from the surface of earth in the earth's gravitational field. We divide the whole distance between the points 1 to n into a large number of small parts from 1 to 2, 2 to 3 and so on. Each of small displacements delta r, हर एक की डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर के बराबर होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, the distance between patch 1 and center of earth O is represented by R1. The distance between O to point or patch 2 is R2. Delta R is the displacement between 2 points 1 and 2. And dear students, R is the mean distance from the midpoint of 1 and 2 and up to the point O. So dear students, there are 4 R: mean distance, R1, R2 and delta R. Now its calculation. We have to find the formula for absolute potential energy. Dear students, displacement is equal to R2 minus R1. Final position minus initial position. इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन से हम R2 बेटा फाइंड कर सकते हैं. R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर. R1 राइट साइड पर नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पर जाएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से R2 की वैल्यू फार्मूला आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर. मीन डिस्टेंस, डियर स्टूडेंट्स, मीन डिस्टेंस या एवरेज, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द मीन डिस्टेंस. पुटिंग वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में R2 की वैल्यू मौजूद है, इसको उठाकर R के फार्मूले में पुट करें. देखें डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा. R एज इट इज है, R1 एज इट इज आ गया. R2 की जगह पर ये लिखेंगे मुकम्मल R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2. R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा. आफ्टर कैंसिलेशन 2 से कैंसिल होगा, R1 रह जाएगा एंड डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2. नाउ डियर स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, R स्क्वेयर is equal to R1 plus delta R over 2 whole square. Opening, R square is equal to first square plus second square plus 2AB. ये A plus B के whole square का फार्मूला ओपन किया. Dear students, delta R square over 4 is a very very low value, lesser value. इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा. जो रिमेन करेगा वो क्या होगा, R1 स्क्वेयर प्लस R1 डेल्टा आर. R1 स्क्वेयर प्लस R1 डेल्टा आर स्क्वेयर ओवर 4 कैंसिल हो जाएगा. मूविंग टू पेज नंबर 2. निगलेक्टिंग डेल्टा आर स्क्वेयर ओवर 4, वी गेट R square is equal to R1 square plus R1 delta R. We know that delta R is equal to
R2 minus R1. Putting this value R2 minus R1. After opening the bracket, R square is equal to R1 square. R1 R2 minus R1 multiply by R1 बेटा क्या होगा R1 square. So simplified formula for R square is equal to R1 R2. इस R square को हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशन में पुट करना है, जिसकी वजह से हमने फाइंड किया. डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने याद भी रखना है. R square is just the product of R1 and R2. So न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशन F is equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R square. कैपिटल G बेटा क्या होगा ग्रेविएशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी, एंड R स्क्वायर जो अभी हमने फाइंड किया R1 एंड R2 हमने इस इक्वेशन में पुट किया. तो देखिए न्यू इक्वेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G mm ओवर R1 R2. ये हमने फोर्स को फाइंड कर लिया with the help of a Newton's law of gravitation. Now the work done is given by work done from 1 to 2. Work done from 1 to 2. Dear students, देखिए work done from 1 to 2 and then 2 to 3 and up to so on up to the interval n. So work done from 1 to 2 is equal to F dot delta R. डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन का फार्मूला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें, क्या आएगा F डेल्टा आर कॉस थीटा. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 180 डिग्री कैसे आएगा बेटा? बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट ग्रेविएशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. So they are opposite to each other and theta is equal to 180 degree. Cos 180 degree -1 के बराबर होता है, जो कि शुरू में आ जाएगा. Work done 1 to 2 is minus F delta R. Equation number 5. Putting values of F and delta R. Work done from 1 to 2 is equal to minus F की जगह पूरा फार्मूला लिखेंगे GMM over R1 R2, ये आ जाएगा. एंड डेल्टा आर किसके बराबर होता है R2 माइनस R1. नेक्स्ट स्टेज में हमने आर्स को ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया है. माइनस GMM R2 माइनस R1 नीचे डिवाइडेड बाय R1 R2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिसको हमने अब LCM को ओपन करना है. देखिए स्टूडेंट्स, R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, तो कैंसलेशन होगी. R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर नेक्स्ट पेज पर क्या बनेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज. वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. इक्वेशन नंबर 6. सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको देख कर लिखना है. वर्क डन फ्रॉम पैच 2 to 3 सिमिलरली माइनस GMM 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3. डियर स्टूडेंट्स देखें 1 to 2 और 1 ओवर R1 1 ओवर R2, 2 to 3 1 ओवर R2 1 ओवर R3. फॉर द लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप के लिए क्या होगा WN माइनस 1 to N. सपोज यू मेक 100 पैचेस, सो n की वैल्यू 100 है, तो n माइनस 1 कितना होगा 99 होगा. तो 99 से 100, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे n माइनस 1 to n माइनस GMM 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n. इक्वेशन नंबर 8. डियर स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा W टोटल या WT, विच इज इक्वल टू 1 to 2 2 to 3 प्लस वर्क डन n माइनस 1 to n. Putting all these values of from equation number 6, 7 and 8. Dear students देखें, equation number 6 को पुट किया, 7 को पुट किया और नंबर 8 को पुट किया, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा. टोटल वर्क डन इन तीनों में से फर्स्ट 2 लिखेंगे, सो ऑन या एज इट इज, और लास्ट 1 लिखा जाता है. इन सब में से बेटा माइनस GMM कॉमन लिया जा सकता है,
देखिए डियर स्टूडेंट्स, माइनस जी एम एम, माइनस जी एम एम, अगेन माइनस जी एम एम, दिस विल बी टेकन एज कॉमन, माइनस जी एम एम। रिमेनिंग स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1/r1 माइनस 1/r2। अब बीच में प्लस आएगा क्योंकि आपने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, 1/r2 माइनस 1/r3 एंड सिमिलरली लास्ट वन आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया, सिमिलर आएगा रिजल्ट, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 1/rn माइनस 1 1/rn। इन सब में सब कैंसल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट वन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड वन थर्ड वन से कट गया, फोर्थ वन फिफ्थ वन से कैंसिल होगा, ये 1/rn माइनस 1 अपने पिछले पैच से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वन इज 1/r1 जो कि सबसे फर्स्ट है, और लास्ट वन है 1/r1, ये आ जाएगा। इफ पॉइंट एन इज सिचुएटेड एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इतना दूर है कैपिटल एन डिस्टेंस कि वो इन्फिनिटी में मौजूद है, मीन्स द डिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी की सिंबल है बेटा, आर एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे मौजूद है। तो डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, 1/rn की जगह इन्फिनिटी पुट नहीं होगा, इन rn की जगह पर इन्फिनिटी को पुट करना है। तो 1/rn, rn इक्वल टू इन्फिनिटी। इन मैथमेटिक्स 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, सो 0 यहाँ पर आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फार्मूला इज माइनस जी एम एम ओवर r1, माइनस 0 मीन्स नथिंग, 0, माइनस जी एम एम ओवर r1। In general form, capital U dear students is absolute potential energy, माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। हमारा तो यहाँ पे R1 और स्मॉल r था, ये कैपिटल R कैसे आया? इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, सो R1 इज इक्वल टू कैपिटल R। So this is the simplified formula for the absolute potential energy, capital U is equal to minus G mm over R. Capital G gravitational constant, its value is 6.67 10 is to power minus 11 Newton meter square per kg square. Capital M is the mass of the earth, 6 multiplied by 10 is to power 24 kilogram. Small m is the mass of the body which can be varied. Capital R is the radius of earth, 6.4 multiplied by 10 is to power 6 meter. So this is the required formula for the absolute potential energy. Dear students, this is today's lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये समझ आई होगी, और हम इंशाअल्लाह ताला चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 6 नेक्स्ट डे में कंसीडर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।